Hello students, and in this lecture we are going to discuss about the histology of alimentary canal, about the different layers which are present in our alimentary canal starting from the esophagus up to rectum, and then we will be going to learn about salivary gland and gastric gland, let's say digestive glands. Up to now we have completed the complete anatomy of digestive tract including tongue, teeth, and all the specialization of esophagus, stomach, small intestine and large intestine in the previous two lectures, right? So starting with histology of alimentary canal, see our alimentary canal is starting from esophagus up to rectum, up to large intestine. It is covered by four layers. I will say alimentary canal is made up of four different layers. The outermost layer is referred as to serosa, and other name of serosa is visceral peritoneum. And this serosa on the outer side is having squamous epithelium or squamous cell. This squamous epithelium is actually mesothelium, or I can say mesothelium is the epithelium of visceral organ. We have learned na epithelial tissue could be ectodermal, could be mesodermal, could be endodermal, and in coelomic epithelium, remember I called that mesothelium and they become wavy and are referred as to tessellated membrane. So squamous layer of cell in our serosa, which is present on the outer side, is also referred as to epithelium of visceral organs. The outermost is serosa. Serosa is made up of squamous epithelium as well as it consists of areolar connective tissue. Areolar connective tissue. So some connective tissue, obviously epithelial tissue would be resting over connective tissue here, right? Now the thing to remember about serosa is, as esophagus is present outside the coelom and their mesothelium is not present. So in esophagus, serosa is absent. Remember this, right? And when I say serosa, which part of serosa is absent? This mesothelium is absent, and only areolar connective tissue or connective tissue layer is present, और उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया. ट्यूनिका एडवेंशिया. मुझे ऐसा याद आया जब मैं कल इसोफेगस बताया था तो वहाँ पे बताया था मैंने कि सिरोसा नहीं होता है. खैर, सबसे बाहर वाला लेयर होगा बच्चों सिरोसा. नेक्स्ट टू सिरोसा वुड बी मस्कुलरिस लेयर. मस्कुलरिस लेयर, और इसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना बोलते हैं. क्यों एक्सटर्ना बोलते हैं? जब आगे कुछ और चीजें पढ़ोगे तो शायद चीजें क्लियर हो जाएंगी. मस्कुलरिस लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं. पहली चीज, स्मूथ मसल्स की दो लेयर होती है, एक वो जो सिरोसा की तरफ और एक वो सिरोसा से जो दूर है. तो जो आउटर लेयर होती है वो होती है क्लोज टू सिरोसा एंड दे आर मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. और जो इनर लेयर होती है दैट इज अवे फ्रॉम सिरोसा, दे आर मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल. ऑल ओवर द एलिमेंट्री कैनाल मस्कुलरिस एक्सटर्ना और मस्कुलरिस लेयर बाई लेयर्ड होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर. सिर्फ स्टमक के अंदर, इन स्टमक एन एडिशनल लेयर इज प्रेजेंट. तो मस्कुलरिस लेयर जो है ट्राई लेयर्ड हो जाती है. उन मसल्स को बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स. तो स्टमक के अंदर ट्राई लेयर्ड होती है, बाकी सब में बाई लेयर्ड होती है. यहां पे भी याद कर लेंगे कि सबसे ज्यादा जो पेरिस्टाल्सिस होता है वो स्टमक में ही होता है. maximum peristalsis do take place
इन स्टमक, और जो मिनिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो रेक्टम में होते हैं। तो सबसे बाहर वाला लेयर बच्चों सिरोसा, अभी डायग्राम बना के देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर सेकंड लेयर मस्कुलरिस लेयर। जो थर्ड लेयर होता है नेक्स्ट टू मस्कुलरिस लेयर, मैं आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा हूं अभी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास सब म्यूकोजा, और जो सब म्यूकोजा होता है उसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, साथ में लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। इट्स ए मिक्सचर ऑफ सम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फोइड टिश्यू। ये भी याद रखेंगे, और मैं यहां पे लिख देता हूं सब म्यूकोजा के अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ वेसल एंड ब्लड वेसल होते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा लिखना। इट कंसिस्ट लिम्फ वेसल प्लस ब्लड वेसल, और इनके साथ साथ थोड़े नर्व फाइबर भी होते हैं इस एरिया में। तो जो सब म्यूकोजा है बच्चों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल और नर्व्स का होता है। और सब म्यूकोजा में एक चीज और याद रखनी है, इन द सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, इन सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम देयर आर सम स्पेशल ग्लैंड्स व्हिच वी कॉल ब्रूनस ग्लैंड आर प्रेजेंट। ब्रूनस ग्लैंड आर प्रेजेंट। और ब्रूनस ग्लैंड क्या करते हैं, ब्रूनस ग्लैंड सिक्रेट करते हैं एक नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन सिक्रेशन। तो सबसे बाहर का लेयर हो जाएगा सिरोसा, सिरोसा के बाद आगे मस्कुलरिस लेयर, उसके बाद आगे सब म्यूकोजा, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं म्यूकोजा। और अगर मैं म्यूकोजा को बताऊं आपको, म्यूकोजा ट्राई लेयर्ड होता है। म्यूकोजा, हम तो यहां पे सिर्फ एक ही लेयर काउंट कर रहे हैं, पर म्यूकोजा इज हैविंग 3 पार्ट्स देयर। सबसे पहले होगी मस्कुलरिस म्यूकोजा, इसलिए इसको बोलते हैं मस्कुलरिस इंटरना, उसको बोल दिया था एक्सटर्ना। इसके अंदर भी जो अरेंजमेंट होता है मसल का, आउटर साइड पर होंगे लॉन्गिट्यूडनल और इनर साइड पर होंगे सर्कुलर। ये जो मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है, इसका काम होता है कि ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजा, राइट। और सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजा। फिर जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो लैमिना प्रोप्रिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसके अंदर होते हैं एक्चुअली डेट लिम्फोइड टिश्यू एंड लिम्फोइड टिश्यू। तो यहां पे ये मेंशन करना ठीक रहेगा कि इलियम में जो पेयर्स पैचेस हैं वो इलियम के लैमिना प्रोप्रिया में होते हैं। उन लिम्फोइड टिश्यू को इन केस ऑफ इलियम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पर न्यूमरस हो जाते हैं, पेयर्स पैचेस कहते हैं। तो अगर सवाल पूछा जाता है ब्रूनस ग्लैंड ड्यूडेनम में कहां होती है, सब म्यूकोजा, और इलियम में पेयर्स पैचेस कहां होते हैं, म्यूकोजा। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा उसका नाम होगा एपिथेलियम, म्यूकोजल एपिथेलियम। ये जो म्यूकोजल एपिथेलियम होता है ये इसोफेगस के केस में तो होता है बेटा स्ट्रेटिफाइड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और बाकी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में सिंगल लेयर हो जाता है। कॉलमनर सेल होती है सिंगल लेयर की, और वो मेनली आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है स्टमक में। फिंगर लाइक ग्लैंड हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, और थोड़े कॉनिकल हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, उनको विलाई कहते चले जाएंगे। तो इनर मोस्ट लेयर वुड बी एपिथेलियम। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर का बना है। सबसे बाहर होगी सिरोसा, सिरोसा के बाद होगा मस्कुलरिस लेयर, उसके बाद होगा सब म्यूकोजा, और सबसे बाद में होगा म्यूकोजा। म्यूकोजा के 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। अब मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगा यहां पर, एक ट्रांसवर्स सेक्शन बना देता हूं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का, और सारे के सारे मटेरियल यहां पे दिखा देता हूं, और एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। टाइम सेव करने के लिए मैं सब चीजें हटा के एक डायग्राम बना देता हूं बोर्ड पर, और फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूं। आप तो वीडियो पॉज करके कर लेना, तब ताकि मेरा वीडियो लेंथी ना हो, मैं वो कर लेता हूं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट पॉज माय रिकॉर्डिंग एंड लेट मी रब दिस एंड मेक दैट डायग्राम। इज दैट क्लियर बच्चों?
यस, सो एक डायग्राम बना है अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें सारे लेयर्स मेंशन कर रहे हैं. इसको मैं अभी लेबल नहीं किया है, तो लेबलिंग कर लेते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर यहाँ पर स्क्वेमियस और लेट मी मेंशन हियर मेसोथेलियम, और ये होगा कनेक्टिव टिश्यू. विच कनेक्टिव टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. और ये दोनों मिलके बनाती है सिरोसा. सो आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा हेयर. अगर मैं सिरोसा को रिप्रेजेंट करूं तो ये पूरा का पूरा सिरोसा है. दिस हेयर इज सिरोसा हेयर. ठीक है बेटा. फिर नेक्स्ट टू सिरोसा. अच्छा, सिरोसा के बारे में एक चीज़ याद रखना था हमें कि भाई सिरोसा नहीं होता है इन केस ऑफ इसोफेगस, क्योंकि मेसोथेलियम नहीं होती है, और सिर्फ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया. फिर जो नेक्स्ट लेयर आती है, दीज आर द आउटर लेयर ऑफ मसल एंड दे आर लॉन्गिट्यूडनल, राइट, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज मसल फाइबर. डोंट गो ऑन दैट शेप के भाई सर्कुलर बना रखे हैं, सर सर्कुलर होगा. आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल, आउटर longitudinal, and these inner one are circular. Inner one is circular, and they make up this layer of muscles is exactly muscularis externa or muscularis layer. Is that clear बच्चों? Now something very important, attention please. Between these muscles, between outer longitudinal or inner muscles, there is a network of nerves here. When we talk about a network of nerves or a network of capillary, तो हम वर्ड यूज करते हैं plexus. So between circular and longitudinal muscle is present a plexus, and this plexus receives nerves from parasympathetic and sympathetic both. Autonomic nervous system plexus is there, and name of that plexus is myenteric plexus, or let's call that Auerbach plexus. Auerbach is the name of scientist. So Auerbach plexus receives the nerve fiber from sympathetic and parasympathetic nervous system. Auerbach plexus is present in muscularis layer externa, because these are the muscles which are externally located. I will be telling you certain muscles which are internally located. So they are present between longitudinal and circular muscle, and it mainly control peristaltic movement. It controls peristalsis. So peristalsis of alimentary canal is controlled by a intrinsic nervous system, and that intrinsic nervous system is Auerbach plexus or myenteric plexus. ठीक है. Now one more point. In case of stomach, next to this circular muscle, in case of stomach would be present oblique muscle fiber. So in stomach these muscularis layer become tri-layered. But I am just making a general representation, so I am just showing you two muscularis layer here. The next layer, this layer is submucosa, and as I told you earlier on, submucosa consists of blood vessels, submucosa consists of lymph vessels, submucosa consists of nerve fiber. Is that clear? Okay. There are some special glands which are present in some mucosa here. There are certain special glands which are present in some mucosa of duodenum, and in duodenum these glands are known as Brunner's gland. So Brunner's gland are present in the submucosa of duodenum, as I promised to tell you, right? I am very focusing on this thing, might be it has been asked in your exam. Next, now to be very exact, between this muscularis layer or circular muscle and some mucosa, between this muscularis layer
and some mucosa, there is another plexus of nerve here. Plexus is a network, right? अब ये जो नेटवर्क होता है इसका नाम लोकेशन कहां पर है? बिटवीन सर्कुलर मसल्स एंड सब म्यूकोजा, और इसका नाम होता है मीजनस प्लेक्सस. इसका नाम होता है मीजनस प्लेक्सस. एक और तरीका है इसको याद रखने का. ये जो प्लेक्सस है डेट इज मोर क्लोज टू सब म्यूकोजा. दिस प्लेक्सस इज मोर क्लोज टू सब म्यूकोजा, इसलिए इसको सब म्यूकोजल प्लेक्सस भी कह देते हैं. सब म्यूकोजल प्लेक्सस और मीजनस प्लेक्सस. अब आप याद रखेंगे विद इन द सब म्यूकोजा नहीं होता है मीजनस प्लेक्सस, एट द आउटर बाउंड्रीज और जस्ट इन द सेंटर और इन बिटवीन सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोजल लेयर. जो मीजनस प्लेक्सस होता है इट कंट्रोल डाइजेस्टिव सिक्रेशन, इट रेगुलेट और कंट्रोल डाइजेस्टिव सिक्रेशन. तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम में दो प्लेक्सस, एक मीजनस और सब म्यूकोजल, वो डाइजेस्टिव सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा, और दूसरा माई एंट्रिक और ऑर्बैक वो आपके पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करेगा. सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम में होता है आपका ब्रूनस ग्लैंड, और सब म्यूकोजा के बाद लेयर आता है म्यूकोजा. दिस हियर इज सब म्यूकोजा, और बाद का जितना भी पार्ट बचा है बच्चे यह म्यूकोजा. यह ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो म्यूकोजा के 3 लेयर. पहला लेयर में लिख रहा हूं यहां पर मस्क्यूलरिस म्यूकोजा और मस्कुलरिस इंटरना. दीज आर द मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड दीज आर मस्कुलरिस इंटरना. एंड मस्कुलरिस इंटरना के अंदर भी सेम पैटर्न ऑफ मसल होता है, बाहर लॉन्गिट्यूडनल और अंदर सर्कुलर. फिर जो ये नेक्स्ट लेयर आया यहां पर, इसका नाम होता है बेटा लैमिना प्रोप्रिया. और लैमिना प्रोप्रिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, एज वेल एज लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, लिम्फोइड टिश्यू का बना होता है. और लैमिना प्रोप्रिया के अंदर इलियम रीजन में होते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, और इन इंटेस्टाइनल टॉन्सिल का दूसरा नाम होता है पेयर पैचेस. तो इस डायग्राम में यहां पे ये भी मेंशन कर लिया हमने कि जो पेयर पैचेस हैं दे एक्चुअली प्रेजेंट इन द लैमिना प्रोप्रिया ऑफ इलियम, और पेयर पैचेस का दूसरा नाम होता है इंटेस्टाइनल टॉन्सिल. पेयर पैचेस इन इलियम इज प्रेजेंट इन द लैमिना प्रोप्रिया. और जो ब्लैक में सेल्स दिखाई हैं दैट इज द म्यूकोजल एपिथेलियम. These cells here is mucosal epithelium. So what you learn from here? Our alimentary canal is 4-layered. Outermost is serosa, muscularis externa, muscularis layer. Within the muscularis layer is orbic plexus controlling peristalsis. Then between muscularis layer and submucosa is submucosal plexus or mesos plexus controlling digestive secretion. Submucosa consists of Brunner's gland in case of duodenum. Mucosa is tri-layered, muscularis mucosa और interna. ब्रैकेट में यहां पे इंटरना भी लिख देता हूं मैं, interna. Then second part would be lamina propria, which is actually made up of areolar connective tissue and lymphoid tissue. And lamina propria in ileum consists of pair patches. And third would be epithelium. And epithelium of mucosa, that's why I am referring here mucosal epithelium. जितने भी ग्लैंड वगैरह होंगे वो इसी एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से बनेंगे. मैंने आपको बताया था कि इसोफेगस में ये स्ट्रेटिफाइड होता है, बाकी पूरे के अंदर ये कॉलमनर हो जाती है. म्यूकस सेल भी तो कॉलमनर के मॉडिफिकेशन से ही बनता है. ठीक है ना. तो बच्चे ये हो गया आपका अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और इसमें एक दो पॉइंट और सुन लेना आप कि जो ऑर्बैक प्लेक्सस और मीजनस प्लेक्सस होते हैं वो नहीं होते इसोफेगस में. मैंने इसोफेगस में मेंशन किया हुआ है कि उसमें सिरोसा नहीं होगा, उसमें ऑर्बैक प्लेक्सस एंड मीजनस प्लेक्सस नहीं होंगे. ठीक है यहां तक.
नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग अबाउट, प्लीज ये भी याद रख लेना आप लोग कि भाई इन ईसोफेगस देयर इज नो प्लेक्सस, नो सिरोसा। मैं मेंशन किया था पहले, एक बार बता रहा हूँ। और एंटीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में क्या हो, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में स्केलेटल मसल होती है। ठीक है, आर वी डन अप टू हियर? अब ये हो गया हमारा हिस्टोलॉजी वाला पार्ट। अब हम शुरू करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब हम शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो लेट मी रब इट हियर, और फिर सीधा शुरू करता हूं मैं अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे, पहले स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में, क्योंकि ये तीनों जो पार्ट है वो ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इनमें। फिर लीवर और पैनक्रियाज का लेक्चर हमें अलग ही रखना होगा, क्योंकि लीवर पैनक्रियाज में लीवर में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा समझने में आपको चीज़ें, देन पैनक्रियाज भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ने के बाद देन देयर वुड बी लेक्चर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे डाइजेस्ट कर रही है चीज़ों को। ठीक है, आई विश इट कुड बी ऑटो क्लियर एज वेल, जैसा आपके क्लास में बोर्ड होता है ना, वो जस्ट क्लीन माई स्लाइड, यहाँ पर तो आपको अजीब ही फीलिंग आ रही है, और लो टेम्परेचर की वजह से अब स्टिकी भी हो गया मार्कर कहीं जो है। आपके जो बहुत ही सजेशंस होते हैं, यूर प्रीशियस सजेशन, वो मुझे काश सुनाई देते कि सर इस पे कुछ मॉइस्चराइजर लगा लो, जो भी है। एनीवेज, सो लेट मी स्टार्ट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो दो पार्ट थे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक था एलिमेंट्री कैनाल, वो कंप्लीट हो गया है, और दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड नो फन इन टेलिंग कि भाई वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, राइट। और विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिक्रेटरी सेल, विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ द सिक्रेटरी सेल, वो अपने सिक्रेशंस वगैरह देती रहती हैं, मतलब वो मीनोक्राइन होती है। फिर तुमने पढ़ा था एपोक्राइन और हेट्रोक्राइन, पर ये मीनोक्राइन ग्लैंड है, राइट। डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो पहला पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूअर स्लाइवरी ग्लैंड। अब एक चीज जिसपे ना बच्चे डाउट वगैरह पूछते रहते हैं, ब्लैब ब्लैब जो भी है, स्लाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होती है। जितनी भी स्लाइवरी ग्लैंड है वो सारी ही बक्कल कैविटी के बाहर है। सो दे आर लोकेटेड outside buccal cavity, the very first thing to remember, and salivary gland are 3 pairs in number. अब अगर मैं आपको salivary gland का रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, लेट से एक बड़े से नाक वाला इंसान, ये उसका बक्कल कैविटी, और यहां पर हो गया उसका टंग, राइट। काली जबान है उसकी नहीं सर, बस आपके पास मार्कर काला है। This here is tongue here, right? And that is a beautiful ear and this black eyes. Okay? अब जो salivary gland एक हम देखेंगे, there would be a pair of salivary gland which are present near to the ear in and cheeks region. जो cheeks और ear का region होता है, वहां पर gland होती है, और उनका duct आके open होगा in the vestibule region near to upper incisor, right। तो एक साइड से एक ही दिखेगी, एक ग्लैंड तो यहां पर हो गई। फिर जो दूसरा ग्लैंड है वो एक्चुअली एंगल्स ऑफ पैलाटाइन बोन पे होता है। मैं बोलूंगा जहां मैक्सिलर मैंडिबल है उनके एंगल पे होता है वो ग्लैंड। लेट मी से आई एम शोइंग इट हियर। और इसका जो डक्ट है वो आके आपका ओपन हो रहा है लोअर इंसिजर के पास, तो समझ में आया एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जो तीसरा ग्लैंड होता है, अगर ये बक्कल कैविटी है तो तीसरा ग्लैंड होता है बीनीथ द टंग बट आउटसाइड बक्कल कैविटी। अगर यहां तक बक्कल कैविटी मान रहे हो तो इसको यहां पे लेबल करो भाई। फिर इट इज नॉट प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, इट इज प्रेजेंट बिलो द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी।
और इसके छोटे छोटे टंग हैं, छोटे छोटे डक्ट्स हैं जो टंग के नीचे जाके ओपन हो रहे हैं। तो कितने हो गए टोटल? 3 पेयर, 3 हमने दिखा दी यहाँ पर। जो ये है पैरोटिड ग्लैंड नियर टू द चिक्स एंड ईयर, सब मैक्सिलरी, इसी का नाम होता है सब मैंडिबुलर। तो एट द जंक्शन ऑफ टू एन एंगल ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन ए एंगल टू लोअर जॉ एंड अपर जॉ, इसलिए दोनों का नाम रखे हुए हैं, ऑल में है। और ये बीनीथ द टंग होगा तो सबलिंगुअल। तो बच्चों हमारे पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और उनके नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं पैरोटिड, उसके बाद जो सेकंड है आपके पास सब मैक्सिलरी, और इसी को कहते हैं सब मैंडिबुलर, और जो थर्ड है आपके पास डेट इज सबलिंगुअल। एट द फ्लोर ऑफ टंग और बिलो द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। लोकेशन मेंशन कर देता हूं यहां पर, नियर टू चिक्स स्लैश ईयर, राइट, एट एंगल ऑफ अपर जॉ स्लैश लोअर जॉ, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बिलो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बीनीथ फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये सबसे लार्जेस्ट और ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये मीडियल साइज की हो गई। अब पैरोटिड ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है, एक या 2 डक्ट निकलेगी सर जब 2 पैरोटिड ग्लैंड है, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जाके ओपन होती है इन द वेस्टिब्यूल रीजन ऑफ अपर जॉ, और इस डक्ट का नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। तो जो पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रेशन लेके आ रहा है वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ तक, वो है स्टेनसन्स डक्ट। और दूसरा जो सिक्रेशन लेके आ रहा है फ्रॉम सम मैक्सिलरी एंड सम मैंडिबुलर अप टू back of lower incisor, they open in at back of lower incisor in buccal cavity, right? इसको बोलते हैं वार्टन्स डक्ट, इसको बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। और जब हम लेंथ की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट है, इट इज अ लॉन्गेस्ट डक्ट। और जो सबसे छोटी डक्ट होती हैं वो एराइज होती है सबलिंगुअल से, और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है टंग का, ये होता है बेटा वेंट्रल पार्ट, और जो ऊपर वाला पार्ट है जहां पेपिलास वगैरह है वो डोर्सल पार्ट। दे ओपन नियर टू वेंट्रल पार्ट ऑफ टंग। सबसे छोटी डक्ट होती हैं और इनको बोलते हैं डक्ट ऑफ रीविनस, डक्ट ऑफ रीविनस। तो डक्ट ऑफ रीविनस जो है वो शॉर्टेस्ट है और लेट्स से स्मॉलेस्ट है, और जो डक्ट ऑफ वार्टन है वो लॉन्गेस्ट है। तो व्हाट आई टोल्ड यू हियर, आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, आई डोंट लाइक दैट मैन विद लॉन्ग नोज। सर बाय द वे हाउ डू यू नो दैट वाज ए मैन? अब आप तो नहीं है क्लास में, तो समटाइम्स आई नीड टू टॉक विद माई सेल्फ, और ये आपके लिए भी एक क्या कहूँ इसको, ब्रेन ट्रीजर बोलूँ, राइट, बीच बीच में होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पैरोटिड सबसे बड़ी लोकेशन और डक्ट, पैरोटिड स्टेनसन्स डक्ट, सबमैक्सिलरी वार्टन्स डक्ट और रीविनस सबलिंगुअल डक्ट, ठीक है। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है इन सलाइवा इज अबाउट
25%। और इसका जो कंट्रीब्यूशन हो, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है सबमैक्सिलरी का, अबाउट 70%, और इसका बेचारी का होता है ओनली 5%। मगर सबसे ज़्यादा टाइलिन जो बनाता है वो बनाता है पैरोटिड ग्लैंड। मैक्सिमम टाइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैरोटिड ग्लैंड। तो समझ में आता है जो वाटर वगैरह अदर मटेरियल है वो ज़्यादा ये बना रहा है। एक्चुअली सलाइवा में सारा वाटर ही तो होता है। फिर इनकी इनर्वेशन की बात करूं अगर मैं, जो 9th क्रीनियल नर्व है वो कंट्रोल करती है सिक्रेशन ऑफ पैरोटिड, जबकि जो 7th है वो कंट्रोल करती है सिक्रेशन ऑफ सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। 7th क्रीनियल नर्व होती है बेटा फेशियल नर्व, अभी नाम ना याद है कोई इशू नहीं है। और 9th होती है ग्लोसोफेरेंजियल, 9th होती है ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, तो व्हाट आई टोल्ड यू कि 3 पेयर ऑफ सलाइवी ग्लैंड आउटसाइड द बक्कल कैविटी, देयर लोकेशन, देयर डक्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू सलाइवा। अब जो सलाइवा होता है वो किस किस चीज का बना होता है उसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, और कौन सी चीज सलाइवा सिक्रेशन को बढ़ा रही है और कौन सी चीज सलाइवा सिक्रेशन को कम कर रही है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सलाइवा डेली अबाउट 1.5 लीटर, और मैं 1500 ml की बात करता हूं, 1 लीटर टू 1.5 लीटर सलाइवा हम बनाते हैं। सलाइवा का जो pH होता है वो 6.8 होता है, स्लाइटली एसिडिक। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको अल्फा अमाइलेज भी कहते हैं। वो अल्फा अमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन। अल्फा अमाइलेज सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है पैरोटिड ग्लैंड से। 99% ऑफ सलाइवा इज वाटर। सलाइवा के अंदर खूब सारा म्यूकस होता है, और सलाइवा के अंदर क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन भी होते हैं। जो क्लोराइड आयन होता है वो एक्टिवेट करता है अल्फा अमाइलेज को। ठीक है, तो सलाइवा इज अ सिक्रेशन विच इज मेनली वाटर, दैट्स व्हाई आई मेंशन कि मैक्सिलरी सबसे ज्यादा बना रही है, एंड म्यूकस एंड मिनरल्स एंड एंजाइम। सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम भी होते हैं बच्चों, और सलाइवा के अंदर थायोसाइनेट आयंस भी होते हैं। लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट आयन ये दोनों ही एंटीबैक्टीरियल होते हैं। दीज आर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। सलाइवा के अंदर कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं, तो सलाइवा एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज वेल, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड are excretory product which we produce in saliva। और सलाइवा के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं उनकी जो लिम्फोसाइट होती है वो IgA बनाती रहती है, एंड दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन सलाइवा। तो एंटीबॉडी भी होता है। तो सलाइवरी सिक्रेशन, सलाइवा इज अबाउट 1000 ml टू 1500 ml, pH is 6.8, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी pH पे ये एंजाइम काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक विद देयर pH, एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयन, मच ऑफ वाटर एंड म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड अदर थिंग। Lysozyme and thiocyanate ion in the lysozymes and thiocyanate in saliva are antibacterial, and urea and uric acid are excretory product, and saliva also consists of एंटीबॉडी लाइक IgA। आपके पास दो तरह के नर्वस इनर्वेशन होता है, एक होता है आपके पास सिंपैथेटिक और एक होता है आपके पास पैरासिम्पैथेटिक। जब पैरासिम्पैथेटिक की बात हम कभी भी करें तो आप ये लाइन याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब आप सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है तो इमरजेंसी कंडीशन है, और अगर आप बहुत डरे हुए हो, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, गला सूख जाएगा, सर गला सूख जाना चाहिए,
तो सिंपैथेटिक इनहिबिट करता है सलाइवरी सिक्रेशन को और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है सलाइवरी सिक्रेशन को। सर ने पढ़ाते पढ़ाते बड़े अच्छे गोलगप्पों की बात की, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा था, राइट। ठीक है बच्चों, ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। और याद रख लेना ऐसे ही कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि 4th ऑर्गन भी डिस्कवर हुआ है, न्यू ऑर्गन डिस्कवर हुआ है इन ह्यूमन। वो 4th पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है जो नेज़ोफेरिंक्स रीजन में है। वक्त लगे तो उसके बारे में पढ़ना। जो डॉग होते हैं उनके जो पेंटिंग होती है, उनके मुंह से जो पानी आता रहता है उसको बोलते हैं पेंटिंग ऑफ डॉग। इट हैज़ बीन बिलीव्ड कि पेंटिंग ऑफ डॉग ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ देयर सलाइवा होता है, पर वो गलत है। पेंटिंग ऑफ डॉग ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ स्वेट होता है। ये तो मैंने बता दिया ना टंग में, हाँ चलो ठीक है, लेट इट बी। सलाइवरी ग्लैंड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो सलाइवा के अंदर कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है, सलाइवा के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है। अब इसोफेगस के अंदर, फेरिंक्स के अंदर कोई भी आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड है ही नहीं। नेक्स्ट जो ग्लैंड पढ़ेंगे हम, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलो ऐसे ही मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करा दूं। याद है जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड पढ़ा रहा था, सर हमें याद नहीं है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कंपाउंड ग्लैंड होती है। और ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर, कंपाउंड ग्लैंड के अंदर पार्ट जो है वो आपका ट्यूबुलर भी है और सेक्युलर भी है। तो कंपाउंड ट्यूबुलो सेक्युलर कौन सा था? पैरोटिड। और जो आपके पास कंपाउंड सेक्युलर था वो होता है सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी। तो कभी अगर रिवाइज करने जाओगे तो वो भी आपको चीज़ मिलेंगी। ये नाम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। देबो वाज आस्किंग मी यस्टरडे अबाउट पैरोटिड ग्लैंड एक्चुअली। तो क्या ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है? आंसर इज यस। और ये हमने जिक्र किया हुआ है पहले भी बच्चे इन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड। तो जस्ट गो थ्रू योर नोट्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डक्ट एंड सिक्रेटरी पोर्शन। खैर, जो दूसरा हम ग्लैंड पढ़ने वाले हैं वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड बाय द इन्वेजिनेशन, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन ऑफ स्टमक एपिथेलियम से बनते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ब्रांच्ड ट्यूबुलर। अगर मैं एक सेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां पर ले लूं, लेट्स से आई एम टेकिंग अ सेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड आई एम मेकिंग इट समथिंग लाइक दिस। There are certain tubes which are having branches, right? So let me make it something like this. अब ये ल्यूमन नहीं बच्चे, इधर ल्यूमन है, ये भी याद रखना। जो भी सिक्रेशन है वो बाहर की तरफ निकालना। तो जो ल्यूमन ऑफ स्टमक है वो इस साइड होगा। नाउ इन दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। सबसे पहले जो सेल में बताने वाला हूं, द मेजर सेल्स आर चीफ सेल्स। चीफ सेल्स नाम दे दिया बिकॉज दे आर द वन विच आर गोइंग टू सीक्रेट ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड एज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, वी कॉल देम पेप्टिक सेल्स एज वेल। अब इनका जो पोजिशन होता है वो लेट्रोबेसल होता है। दीज आर बेसो लेटरल इन पोजिशन। तो लेट्स से मैं यहां पर कुछ ग्लैंड बना देता हूं, कुछ सेल्स रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये सेल है ये अपने सिक्रेशन को पोर कर रहे हैं, और वो सिक्रेशन प्रोटीन इन नेचर है, इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिवेट होकर एंजाइम बनेंगे। कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे? पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन इन स्टमक ऑफ इन्फेंट ओनली, गैस्ट्रिक लाइपेज, दीज आर द मेजर एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद कुछ और सेल्स होती हैं बच्चे जो साइड में प्रेजेंट होती है, पेरिफेरल इन पोजीशन है, और थोड़ी सी इलोंगेटेड भी होती है लाइक दिस। तो इन सेल्स को मैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए थोड़ा इलोंगेटेड दिखाता हूं, और इनकी जो पोजीशन होती है वो पेरिफेरल होती है। और इन सेल का नाम होता है, बिकॉज दे आर पेरिफेरल इन पोजीशन, वी कॉल देम पैराइटल सेल। और जब आप
एपिथेलियम को डाई करेंगे एसिडिक स्टेन से, इओसिन से, तो वो एसिडिक स्टेन को रिटेन कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। अब ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल का काम होता है, दे आर द वन विच आर गोइंग टू मेक HCl, दे प्रोड्यूस HCl, और एक बनाता है कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर। और कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। Major reabsorption of vitamin B12 occurs in ileum part and some part of vitamin B12 is also absorbed in large intestine. Right? यहाँ पे HCl के क्या क्या काम होते हैं? HCl एक तो एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन रखता है, HCl एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, एक्टिवेट्स एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, प्रोरेनिन, दोनों, राइट। गैस्ट्रिक लाइपेज तो फोल्डिंग कर ही लेता है इस एनवायरनमेंट में, पर मतलब HCl के बिना गैस्ट्रिक लाइपेज कुड बी एक्टिवेटेड बट नॉट पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, लाइक पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। गैस्ट्रिक लाइपेज का बहुत ही कम अमाउंट होता है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी एक्टिविटी है, तो हमें नुकसान नहीं है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। पर अगर एक्टिवेटेड पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन आ गए, देखो प्रोरेनिन तो इन्फेंट में ही होता है, इसका दूसरा नाम होता है काइमोसिन, और ये इन्फेंट के अंदर है, इसको भी मैं भूल जाता हूँ अभी। पेप्सिन एक्टिवेटेड आ गया, फूड पेट में प्रोटीन्स नहीं है, खाना नहीं है, तो वॉल ऑफ स्टमक को खाना शुरू कर देगा, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में भेज रहा है, नेचर इज सो वाइज। देन बच्चे सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती हैं, द मैक्सिमम टाइप ऑफ सेल विच आर प्रेजेंट हेयर, दे आर रेफर्ड एज टू म्यूकस नेक सेल, दे आर रेफर्ड एज टू म्यूकस नेक सेल। और ये जो म्यूकस नेक सेल्स हैं, ये बच्चे आपका म्यूकस बनाती रहती हैं, गॉबलेट सेल की जैसे हैं, तो आई एम जस्ट मेंशनिंग दे आर प्रेजेंट गॉबलेट सेल ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम व्हिच आर सिक्रेटिंग म्यूकस एज वेल एज दे ऐड बाइकार्बोनेट देयर। तो म्यूकस थर्ड सेल इज म्यूकस नेक सेल, और जो ये म्यूकस नेक सेल होती है ऑल ओवर द एपिथेलियम होती है, सबसे ज्यादा जो है म्यूकस नेक सेल ही होती हैं। They produce mucus and bicarbonate, और जो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट है ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टमक को फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ HCl। Then here on the base part, here on the base of this gland, I am talking about tubular gland, right? Here in the basal region are present certain endocrine cells. So 4 type of cells are present. एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सेल में 3 तरह की सेल याद रख लेना, डी सेल, एंटेरो क्रोमोफिन, एंटेरो क्रोमोफिन सेल्स एंड जी सेल्स। देखो जो डी सेल है वो बनाता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तो डी सेल का दूसरा नाम आर्जेंटिफिन सेल भी लिख देते हैं, डी सेल का दूसरा नाम आर्जेंटिफिन सेल भी हो जाता है। एंट्रोक्रोमोफिन सेल जो होती है वो बनाता है आपका हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, और जो जी सेल्स है वो बनाता है आपका गैस्ट्रिन। अब सोमेटोस्टेटिन इनहिबिटरी होता है इन नेचर, और ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आते रहेंगे। हिस्टामिन का एक काम और होता है, ये एनहांस करता है रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिन को आप आगे लेक्चर्स में हार्मोन कंट्रोल में जाके पढ़ोगे, इट इज स्टमक फ्रेंडली हार्मोन, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन के लिए होता है। इट कंट्रोल मोटिलिटी एंड सिक्रेशन ऑफ स्टमक,
स्टमक फ्रेंडली हार्मोन है ये। तो स्टमक के अंदर बच्चे होते हैं चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पैराइटल सेल्स, म्यूकस नेक सेल, एंडोक्राइन सेल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे आर सर्टेन प्रेजेंट स्टेम सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है और वो रिप्लेस होकर कोई भी सेल बना सकते हैं इसमें से। अनडिफरेंशिएटेड सेल है और टाइम टू टाइम जो सेल डैमेज होते हैं उसके रिप्लेसमेंट में ये बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है सर? गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। जो प्रोरेनिन है वो सिर्फ इन्फेंट के केस में होता है। इन्फेंट होता है दूध पीता है बच्चा, राइट, जिसकी डाइट ही कंप्लीट मिलके 6 महीने तक के बच्चे को इन्फेंट कहेंगे। तो इन इन्फेंट ओनली। वैसे तो अगर मैं बताऊँ इसको इन्फेंट ऑफ मैमल कहा जाता है कि भाई इन्फेंट ऑफ मैमल में मिलता है ये, ह्यूमन वगैरह में अब ज़्यादा रिपोर्टेड है ही नहीं है, पर अभी ना किताबों में लिखा है तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं, अभी याद ही रखेंगे। अदरवाइज काफ के अंदर मिलता है ज़्यादा ये, राइट। क्यों सर काफ का बच्चा ज़्यादा दूध पीता है? काफ का बच्चा या गाय का बच्चा? लेट इट बी। देन HCl, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस नेक सेल, एंडोक्राइन सेल, ब्ला 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 ब्ला। अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH होता है एडल्ट्स में इन अ रेंज ऑफ 1.5 to 2। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज इन अ रेंज ऑफ 1.5 to 2। और इसी pH पे पेप्सिनोजन काम करेगा, इसी pH पे गैस्ट्रिक लाइपेज काम करेगा, और इस pH पे आके स्लाइवरी अमाइलेज काम नहीं करता है। फिजियोलॉजी में काम आएगा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पढ़ने में। जो बेबीज होते हैं इन्फेंट वगैरह उनका pH 5 की रेंज में होता है, बट स्टमक pH इज डेट मच। स्टमक के अंदर खाना 4 से 5 घंटे तक रहता है। स्टमक का वॉल्यूम वगैरह मैं कल बता दिया था आपको। स्टमक इज द मेजर साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। फिर स्टमक के बाद आइडेंटिकली एग्जैक्टली तो हमें आइडियली पढ़ना चाहिए लीवर, पैनक्रियाज ऑफ इंटेस्टाइन, बट लीवर पैनक्रियाज थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो मैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपको डिस्कस कर देता हूं और फिर अगले लेक्चर में लीवर एंड पैनक्रियाज में ले लूंगा। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड को बोलते हैं सकस एंट्रिकस, राइट। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर एक डायग्राम पढ़ेंगे पहले, विलाई, माइक्रोविलाई और फोल्ड ऑफ कर्क रिंग शो कर दूंगा मैं, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स शो कर दूंगा, और फिर वहीं पर बता दूंगा क्या होते हैं क्रिप्ट, और क्रिप्ट ऑफ लिबर उनके अंदर ही होती है पेनिसेल, एंटेरोसाइट्स, आर्जेंटिफिन सेल एंड सो ऑन, जो इवेंचुअली मिलके बनाती है इंटेस्टाइनल जूस। अच्छा, जो ये एंडोक्राइन सेल्स हैं यहाँ पर, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स टू बी एग्जैक्ट इज द नेम, इसी का नाम होता है बेटा आर्जेंटिफिन सेल्स, आर्जेंटिफिन सेल्स। और आर्जेंटिफिन सेल का एक टाइप होता है डी सेल, दूसरा टाइप होता है एंडोक्रोमोफिन, और तीसरा होता है जी सेल। तो मैं शायद डी सेल को बोल देता आर्जेंटिफिन। इट्स अ टाइप ऑफ आर्जेंटिफिन सेल, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ आर्जेंटिफिन सेल्स, राइट। देन हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लेट मी टेल यू अबाउट द सिक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सकस एंट्रिकस कहते हैं उन एंजाइम्स को, ब्रश बॉर्डर्ड भी कहते हैं क्योंकि वहां पे खूब सारी माइक्रोविलाई होती है। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं और क्या क्या कंटेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आप पहले तो ये समझें बच्चों कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका एपिथेलियम रेगुलर ना होके उसके एपिथेलियम के अंदर ऐसे फोल्ड्स आ जाते हैं, और ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं विलाइज। यू गॉट माई पॉइंट? नाउ अटेंशन प्लीज, एंड आई रियली वॉन्ट यू टू मेक अ वेरी क्लियर कंसेप्ट फ्रॉम हियर। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनको बोलते हैं बेटा एंट्रोसाइट। दीज एपिथेलियल सेल्स हियर, मैं एक ही फोल्ड के ऊपर बना रहा हूं, बाकी सारे फोल्ड के ऊपर है ये। दीज एपिथेलियल सेल्स हियर इज नोन एज एंट्रोसाइट। ये फोल्ड है फिंगर लाइक फोल्ड, इनको बोलते हैं विलाई। व्हाट आर दिस फिंगर लाइक फोल्ड हियर? विलाई। हाउ मेनी विलाई आई हैव मेड? 3 विलाईज।
Inner side of the villi would be circular fold of mucosal membrane, and this circular fold of mucosal membrane is known as what? Please say fold of Kerckring. Then villi और एंट्रोसाइट के ऊपर ये छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे उसको बोलेंगे माइक्रोविलाई. तो प्लीज मेक ए वेरी क्लियर कंसेप्ट. माइक्रोविलाई आर द प्रोजेक्शंस ऑफ एंटेरोसाइट एंड विलाई आर द extensions of mucosal epithelium, and circular fold of mucosal epithelium is plica circularis. अब दो विलाई के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको बोलते क्रिप्ट. तो वन क्रिप्ट इज हियर, अदर क्रिप्ट इज हियर, अदर क्रिप्ट वुड बी देयर. सो दिस स्पेस हियर इज क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन. तो क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन टू बी एग्जैक्ट क्या होता है? वो स्पेस, वो खाली जगह, वो इंडेंट जो दो विलाई के बीच में है. और विलाई आर द फोल्ड ऑफ एपिथेलियम. देन समथिंग मोर इंपॉर्टेंट हियर. अब ये जो विलाई होती है इधर है ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और यहां पर होती हैं ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स. ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज में ये कहूंगा. कुछ कैपिलरीज होती है जो ब्लाइंडली एंडेड होती हैं, जो एक तरफ बंद है और दूसरी तरफ ओपन है. इस ब्लाइंडली एंडेड कैपिलरी का नाम होता है बेटा लिम्फ कैपिलरी. और लिम्फ कैपिलरी को भी बोलते हैं लैक्टियल. और लैक्टियल्स वो कैपिलरीज है जो क्या एब्जॉर्ब करने वाली है? फैट. लैक्टियल और लिम्फ कैपिलरी ब्लाइंडली एंडेड होगा. लेट्स से दिस इज आल्सो ब्लाइंडली एंडेड हियर. सिमिलरली वुड बी लाइक दिस. फिर एक ब्लड वेसल है जो ब्लड लेकर जा रही है. जो ब्लड लेकर जाती है उसका नाम होता है आर्टरीज. आर्टरी. और ये आगे जाके ब्रांचिंग करना शुरू करेगा, आर्ट्रियोल बनाएगा और आर्ट्रियोल जाके आगे कैपिलरीज बन जाते हैं. तो मैं ज़्यादा ब्रांचिंग ना दिखा के इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ ऐसे करके. डोंट आस्क मी सर आपने ब्रांचिंग क्यों नहीं दिखाई. आई एम कंटिन्यूइंग इट लाइक दिस. ब्लू कलर में जो है, लेट्स से दिस इज आर्टरी हियर, दिस इज आर्टरी हियर और ये कैपिलरीज है. ये वो कैपिलरीज है जो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आ रही हैं. और फिर आगे जाके ये कैपिलरीज शेयर ब्लड, शेयर न्यूट्रिएंट. मेरा ग्रीन मार्कर नहीं मिल रहा है. लेट्स से दिस इज द ग्रीन मार्कर. आई होप सो. फिर इन कैपिलरीज के अंदर न्यूट्रिएंट इन्होंने जो है पिक कर लिए है एंड ऑक्सीजन वहां पे दे दिया है. टू बी एग्जैक्ट मैं बात करूं. और दीज आर द वन विच आर कैपिलरीज हेयर बट दे आर कैरिंग डीऑक्सीडेटेड ब्लड. और ये आगे चल के बन जाती है वेन्स. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न हेयर, in this villi, beneath this villi are present blood capillaries and lymphatic capillaries. Beneath this villi are present blood capillaries and lymphatic capillaries. ठीक है बच्चे. आर्टरी, वेन, ब्लड कैपिलरीज. जो ब्लाइंडली एंडेड है वो लिम्फेटिक कैपिलरी. यहां पे इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी होगा. एंड यूर एंट्रोसाइट, विलाई, माइक्रोविलाई, क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन. अब आते क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन में. जब इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करेंगे बच्चों तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में दो तरह की ग्लैंड होती है. इंटेस्टाइन के अंदर दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं. एक होती है आपकी ब्रूनस ग्लैंड. और ब्रूनस ग्लैंड कहाँ है प्लीज अब तो बता दो मुझे. इन द सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम. और वो जो सिक्रेशन बनाती है वो अल्कलाइन सिक्रेशन होता है. उसमें कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता. नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन सिक्रेशन. और जो दूसरी ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन. माने इनसाइड द क्रिप्ट ग्लैंडुलर सेल है जिनको बोल रहे हैं क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन. Here, right? Here there are certain glandular cell which are present. अब इस क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिनको बोलते हैं पेनिस सेल. और जो पेनिस सेल होती है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं.
कभी पहले आपने पढ़ा होगा कि म्यूकस ग्लैंड एंड पेनिस सेल आर यूनिसेलुलर ग्लैंड, और ये जो पेनिस सेल हैं ये एग्जैक्टली बनाती हैं लाइसोजाइम्स एंड डिफेंसिन, लाइसोजाइम्स एंड डिफेंसिन प्रोटीन। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं जो आपको, जो एंटीबैक्टीरियल इन नेचर है, दे आर बोथ एंटीबैक्टीरियल। तो 2017 में सवाल पूछा गया था कौन सी सेल एंटीबैक्टीरियल सिक्रेशन बनाती है इंटेस्टाइन की, पेनिस सेल वाज द आंसर। ठीक है बच्चे, कुछ सेल होती हैं जिनका नाम होता है आर्जेंटेफिन सेल, और आर्जेंटेफिन सेल्स बनाती हैं सोमैटोस्टेटिन, और सोमैटोस्टेटिन एक इनहिबिटरी मॉलिक्यूल है, वो इंटेस्टाइन ग्लैंड के सिक्रेशन को रोकता है। बाकी जो क्रिप्ट ऑफ लीवर खून की सेल है उनको स्पेशल नाम नहीं देते, और दे आर द वन विच मेक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब क्योंकि इन सेल के आसपास जो भी सेल है एंट्रोसाइट वो ब्रश बॉर्डर्ड होती है, उन पर खूब सारी माइक्रोविलाई होती है, इसलिए जो भी सिक्रेशन है उसको बोलते सकस एंट्रिकस या ब्रश बॉर्डर। इंटेस्टाइनल जूस is also known as succus entericus or enzyme of succus entericus are known as brush bordered enzyme। अब बस ये याद रख लो कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अल्कलाइन पीएच होता है इन रेंज ऑफ 7.8 to 8.2, इन रेंज ऑफ 7.8 to 8.2। सबसे पहले होता है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज को आप बोलते हैं एक्टिवेटर एंजाइम। किसको एक्टिवेट करता है? ये ट्रिप्सिनोजन को, और ट्रिप्सिनोजन कहां से आएगा? पैनकेटिक जूस से, एक्टिवेटर एंजाइम। दूसरा आपके पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए स्पेसिफिक डाइसैकेराइडेज आते हैं, जैसे माल्टेज होता है माल्टोज के लिए, लैक्टेज होता है लैक्टोज के लिए, सुक्रेज होता है सुक्रोज के लिए, और सुक्रेज का दूसरा नाम होता है इन्वर्टेज, कि सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। फिर इसके पास होता है बेटा इंटेस्टाइनल लाइपेज, देन न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज। आगे चल के इनके फंक्शन भी बताऊंगा मैं क्या करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटीन डाइजेशन के लिए अमाइनोपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। तो ये जितने भी एंजाइम मैंने यहां पे लिखे हैं, these all are brush bordered enzyme, these all are the part of succus entericus and they would be involved। देखो जो अमाइनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज है वो आपका फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन देगा, अमाइनो एसिड। न्यूक्लियोसाइडेज फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ डीएनए आरएनए देगा। एंट्रोकाइनेज एक्टिवेट करेगा और ये फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देगा। तो जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तो दैट वुड बी वेरी क्लियर। तो बच्चों आज हमने पढ़ लिया हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड 3 मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड, वन वाज सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड। कल का लेक्चर आई विल बी रिकॉर्डिंग अपॉन लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस और डाइजेस्टिव ग्लैंड वुड बी कंप्लीटेड, एंड देन नेक्स्ट डे आई विल बी टीचिंग यू अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। और उसके बाद के जो लेक्चर्स है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, हार्मोन, वो सारे अपलोडेड है, और विटामिन का लेक्चर भी मैं एक आध दिन में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विश यू अ वेरी गुड डे अहेड। शाम को मिलते हैं इन द कंटिन्यूशन ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थैंक यू, क्लास इज डिसमिस्ड।